Hello everyone. Hello everyone. We had discussed in previous lecture about the Bresenham's line algorithm, and also we had solved a numerical example on Bresenham's line algorithm. So आई होप कि आप लोग जो है जो मैंने स्टेप्स बताए थे, जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था, आई होप कि आपने उसको स्टडी किया होगा एट होम और जो है न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस किया होगा। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें और समझ में आ गई होगी। तो मैं अभी आज जो है आपको न्यूमेरिकल ही लगवाऊंगा और एक ऐसा न्यूमेरिकल लगवाऊंगा जो AKTU सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बीटेक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल। So you have to focus on the green board to how to solve the numerical on the Bresenham's line algorithm. So with the use of the Bresenham's line algorithm, how to solve the numericals and how to get the intermediate points to draw a line with the help of Bresenham's algorithm and graphic software. So let's start. So the questions I am going to write the question which is asked in 2012 in AKTU semester examination. The question is that using Bresenham's line algorithm, question using Bresenham's line algorithm to find the pixel positions along the path between endpoints what between the endpoint 15, 8 and 28, 16. क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन asked in AKTU 2012-13. How much marks is 0.5 marks. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कि आप जो है Bresenham's line algorithm, you have to use the Bresenham's line algorithm to find the pixel position along the path between endpoints given in the question 15, 8 starting point, initial point, and the endpoints is 28, 16. We have to find the intermediate point between 15, 8 and 28, 16 with the help of Bresenham's line algorithm. तो हम करेंगे क्या कि हम इनिशियल पॉइंट जो है गिवन है और एंड्स पॉइंट जो गिवन है, इन दोनों के बीच में हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ Bresenham's line algorithm. तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि 2012-13 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। 2013 में द क्वेश्चन आस्क्ड on the Bresenham's line algorithm 5 मार्क्स पूछा गया था। ठीक है, तो सी हाउ नाउ द डेटा इज गिवन, data given. I'm going to solve the problems. First problem is how data is given, the initial coordinates and the final end coordinates is given in the question. तो हमारे पास जो 2 इनपुट्स हैं, अगर हम बात करें 2 इनपुट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जो गिवन है वो गिवन कितना है 15, 8 and 28, 16. Okay, so first of all we have to find out the slope.
ठीक है, तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप. द स्लोप इज इक्वल्स टू m इज डिनोटेड बाय m स्मॉल m and small m is equals to dy by dx. dy is equals to y2 minus y1 and dx is equals to x2 minus x1. So you have to know the formula how to calculate slope of line. Okay, so m is nothing but it is the slope. M is the dy by dx. dy is nothing but y2 minus y1 and x2 minus x1. I have already told in the previous lecture the formula, how to obtain this formula. You know that it is very easy. So how to calculate the m is equals to dy by dx and dy is equals to y2 minus y1 and x2 minus x1. Where it is here. This is x1. Suppose that we assume that this is x1 and this is y1 and this is x2 and here this is the y2. So ends points are given in the question. So how to calculate the slope? M is equals to y2 is nothing but 60, y1 is 8 divided by x2 is what? 28 minus x1 is, this is not 20, this is 28. It seems like 20 but it is 28. x2 is nothing but x2 is 28 and x1 is what? 15. So 8 divided by 5, 3, 1. What is the value of m? That is nothing but it is 0.62. So we had studied about the Everson-Humphrey algorithm. We had studied three conditions. First condition is what? First condition is m is slope is more than 1 or slope is less than 1 or slope is maybe negative. So we had studied about three conditions. So what is this? Here you see here m is equals to 0.61. It's mean the value of m slope is less than 1. Okay, we have applied that algorithm. Okay, when we had studied m is less than 1. Okay, तो see here टेबल को ड्रॉ करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. ओके, focus on the green board. It will be easy to understand how to calculate the intermediate points with the help of the Everson-Humphrey algorithm. Okay, थोड़ा समय लगता है. Okay, so first of all we have to write the initial points which is given in the question. So here this is nothing but this is the x. Okay, it is visible now. I hope आपको दिख रहा होगा. It is x coordinate and second one is y coordinate. Okay, clear? And here is decision variable. It is p. It is denoted by p. Here I will write the situation condition. If the decision variable is less than 1 or more than 1, then the formula will be changed. So here is the first one. This is x की value is going to x, y, and the decision variable. Decision variable, right? So first of all, we have taken initial value 15, 8. Okay, initial value is हम initial value से start करेंगे. मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे. इनिशियल वैल्यू आप जो भी आपका इनिशियल डेटा स्टार्टिंग पॉइंट्स रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा, उसको हम इनिशियल मानेंगे. और कहाँ तक हमको सॉल्व करना है? एंड पॉइंट तक सॉल्व करना है. कहाँ तक? जब हमको अचीव हो जाएगा क्या? एंड पॉइंट्स में अचीव हो जाएंगे. तो हम 15, 8 से स्टार्ट करेंगे. तो 15, 8 में स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ फॉर्मूला जो लगाएंगे, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट इज 15, 8 एंड स्लोप इज m is less than 1. ये वैल्यू is less than 1 आ रहा है. Then the formula, p वेरिएबल formula जो यूज करेंगे वो हो जाएगा 2dy minus x. Okay, so here p naught is equals to 2dy minus 3x. What is the value of dy is nothing but dy is actually यहाँ पे मैं अगर देखूँ dy की वैल्यू निकाल लूँ तो dy y2 minus y1 that is 8. dx is equals to 20 minus 15 that is a 13. Okay,
तो dy is 8, तो 2 into 8 minus 13, 2 into 2 at 16 minus 13 is equals to 3, equals to 3, equals to 3. Okay, sorry, 3, not 3, but actually 12 is 16, 13 is 3, that is 3. Then P naught is more than 0, means more than 0 means कंडीशन में बताया था आपको, एक सेटिंग हो गया तो फॉर्मूला एच लग जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ अब मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया तो मैंने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको बताया था, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो जब हमारा ये पॉजिटिव वाली वैल्यू P नॉट इज मोर देन 1, देन दोनों में क्या होगा, x और y दोनों में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ओके, नाउ P1 formula will be changed as per this, that is the P naught plus 2 into dy minus dx. So P naught is nothing but it is 3 and 2d 8 13, तो 13 8 8 4 5 5 2 10 minus 3, that is value is 3 plus 2 into dy is 8 minus 13, 5 10 minus 7. Then P naught is P1 is less than 0, वैल्यू कितनी है, 7 है। ओके, P1 is less than 0, अगर आपका P1 less than 0 हो गया तो मैंने बताया था अगर नेगेटिव आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में क्या होगा, चेंजेस होंगे, ये क्या होगा, इमेज शेप रहेगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको खासा समझ में आ जाएगा, मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू मूव, अगर हमारा नेगेटिव है तो फॉर्मूला में भी चेंज, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होती है वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा क्या रहेगा, P2 इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख सकते हैं P1 plus 2dy, P1 plus 2dy, P1 is what, minus 7 plus 2 into 8, that is 16, sorry 8 16 minus 7, that is 9. Then P2 is more than 0, formula will change, P3 sorry यहाँ पे क्या रहेगा 18, this one is 10, that is 10. Now P3 is equals to P2 plus 2 dy minus dx, formula will change ना। देखिए आपको माय डियर, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको इस वैल्यू को देखते रहना है। अगर वैल्यू डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बात को समझिएगा, बात समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब अगेन वाली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो अगेन हम फॉर्मूला क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मैं आप देखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 plus 2 into 8 minus 13, तो क्या जाएगा, दैट इज आई थिंक दैट इज अ 1 what minus 1, अगेन minus 1, मतलब P3 is less than 0, अगेन फॉर्मूला will change, तो यहाँ क्या रहेगा, दैट इज 90, इट इज 10 actually, no changes in x y direction, that is P4 is what, P3 plus 2d, okay, P3 is what, minus 1 plus 2 into 8, it is 15, okay, that is the more than, P4 is more than 0, again P4 is more than 0, then the coordinate is 20 and this is the L, okay, getting, okay, nice, that is the P5, now P5, again see here, the value of distant variable is more than 0, it means the formula will be changed, that is the P4 plus 2 dy minus dx is equals to, these are what, these are the pixel, okay, what are you getting, we are getting the pixel between 15 comma 88, next pixel is 16 comma 9, 17 comma 9, 18 comma 10, 19 comma 10, 20 comma 11, so these are the pixels we are getting now, okay, after solving this, we are what we have we are getting pixels between initial point and the end points, okay. So here P5 equals to P4 is nothing but this 15 and 2 into 8 minus 13, the value is, we are getting
इट्स मीन मैं अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, टेकिंग टू मच टाइम, देन p5 इज मोर देन 0. ओके मैडम, आप यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, आगे की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आप इसको समझिएगा और अच्छे से लगाइएगा. ओके, तो p5 इज मोर देन 0. अगर p5 मोर देन 0 है, इट्स मीन नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज increment 20 of 22 the okay. Again p6, what is the value of p6? p6 equals to 5. इसकी वैल्यू कितनी है? 5 plus 2 8 minus 13 is equals to minus 5. Again p6 is less than 0. Formula will be changed. Increment only next coordinate and y coordinate remains same. That is 22. That is 22 and that is remains constant. The formula will be changed. P7 is equals to P6 plus 2 divide the value P7 is equals to minus 5 plus 2 into 8. The value we get 11. Again P7 is more than 0. The increment in the coordinate in the next pixel we get 23. The next pixel we get that is 23 and that is 13. Okay. The formula will be changed. The P8. Again, we are using this formula and write the value and directly write the value. P8 is 11 plus 2 into 8 minus 13. The value we get that is a 1. P8 is more than 0. Increment to 24 and that is the 2040. Okay. आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, आपको क्लियर हो रहा होगा. आप और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हैव पेशेंस एंड फॉलो द रूल्स, फॉलो द स्टेप्स एंड प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस. यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मच मोर. ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है. विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेन द we know about the Bressenham. First of all, we know the Bressenham algorithm. What is the Bressenham algorithm? And you have to know about the condition. What are the conditions? I had already told you in the previous lectures. We had discussed about 3 conditions. First condition in m is more than 1, m is less than 1, and the third one is that may be negative. तो उस केस में मैंने बता रखा है. तो you have to know about this. Okay? Then you have to you are able to solve the numericals very easily. Okay, so now that is the p is more than 1. Again formula will change and p9 is what? P9 is nothing but that is 1 plus 2 into again 8 minus 1. very easy. एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो चीज़ें अपने आप बहुत ही आसानी से हो जाती हैं. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेप जहाँ चाहिए जाएगा. अब अगेन p9 is negative, p9 is less than 0. Again, one the increment is x, this remains constant. Okay. Again, p10. I'm going to find out p10. P10 is right. 9 plus 2 into 8. Value is 7. Formula will change from here. Formula will change. Again, the value is 7. P10 is more than 0. Then increment is in both the coordinate 26 and the 15. Now P11, I think it is visible. P11 it is value 7 plus 2, 8 minus 30. We get minus 30. Then P11 is less than 0. Okay, P11 is less than 0. Then increment in x, that is, and it is the remains constant. Okay, now we have to find P11, P12, that is the P13 plus 2 into 8 minus 13 is equals to, the value is 13. Now P12 is more than 0. The next coordinate that is the 28 and that is the 16. Now here ends कर देंगे. See here and see here. What is the value of the endpoints? What is the coordinate of endpoint? That is 28, 16. And how we get
28 comma 16. ठीक है, तो what you have understand the initial point is 15 comma 8 and the final end point is 28 comma 16. We have calculated the intermediate points between 15 comma 8 and 28 comma 16. It is nothing but these are the pixel. Okay, see the question, find the pixel position. Now these are the pixel, we are getting after solving the numericals. तो बेसिकली हमें जो फोकस कर, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो लाइन, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करते हैं, आपको ये पिक्सेल्स चाहिए ना, ये सारे पिक्सेल्स चाहिए। तो आप इनिशियल पॉइंट मालूम हो गया, आपको इनिशियल पॉइंट मालूम चल गया हमको। अब यहाँ से ये हमारा एंड पॉइंट होता है, यहाँ 28 कॉमा 16, ये 15 कॉमा 8 है। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी थी तो आपको इनिशियल पॉइंट्स नहीं पता था, पिक्सेल्स नहीं पता था, नेक्स्ट पिक्सल नहीं पता था। तो अभी में क्या होगा, आपको नेक्स्ट पिक्सल का मालूम चल गया। अब उस नेक्स्ट पिक्सल की हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, डिफरेंट पिक्सेल्स यहाँ पे प्लॉट करके ग्राफ पे। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट हम लोग नाउअडेज वी आर यूजिंग AutoCAD एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ द ब्रेसन हैंड्स एल्गोरिथम। तो माय डियर, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हमें पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर ओके। अगेन मैं आपको थोड़ा और बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले फोकस करना है आपको इधर। सबसे पहले क्वेश्चंस ऐसे एग्जामिनेशन में आते थे, अभी भी आएंगे। AKTU में देखो आया हुआ है क्वेश्चन ही, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे पूरा। AKTU में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, सीधे लिखा रहेगा। सम टाइम जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पे लाइन लिखेगा सर्किल एल्गोरिथम यूज करना है। तो कहेगा कि पिक्सेल्स ही हमें फाइंड आउट करने, फाइंड द पिक्सल पोजीशन अराउंड द पाथ बिटवीन द एंड पॉइंट्स 15 कॉमा 8 and 28 कॉमा 16, राइट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तुरंत ये रियलाइज या याद हो जाना चाहिए, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, हमने कौन से एल्गोरिथम, सारे एल्गोरिथम आपको पता होने चाहिए। और ये कैसे आप पता चल पाएंगे, आपको तब याद हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, चीज़ें अपने आप आपको माइंड में सेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस किए आपको उस स्टेप्स याद कर लें, तो डेफिनेटली सब जो आप एग्जाम देके जाओगे उस टाइम आपको भूल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा गिवन, क्या गिवन डेटा है आप उसको देख लीजिए। हाँ, एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन आपको स्लोप मेन पॉइंट, स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्लोप निकालने का हमने देखा कंपैरिजन के लिए 1 से मोर देन है या लेस देन है। अगर वैल्यू लेस देन है या मोर देन है तो उस हिसाब से आपको एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या लेस देन 1 आ गई है, तो हमने क्या किया, कंडीशन लगाया। और इनिशियली अब हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, किससे स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे हम 15 कॉमा 8, ओके, इनिशियली स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि हाँ हमारा वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है, सॉरी लेस देन 1 आ रहा है, हमने इस फार्मूला को इनिशियली यूज करेंगे। अब हमने यूज किया, पहले वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अभी 3 है क्या है, पॉजिटिव आ गई। अगर पॉजिटिव आ गई तो वैल्यू क्या है, इस वैल्यू का मोर देन 0। अच्छा, वैल्यू मोर देन 0 होगी, फार्मूला क्या अप्लाई कर देंगे आप, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, अगला नेक्स्ट पिक्सल हमने ये गेट कर दिया। जैसे ही आपने P0 निकाला, नेक्स्ट पिक्सल आपने गेट कर दिया। अब आप P1 निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो P1 और यहाँ पे आ जाएगा, ऐड कर देंगे। निकाला आपने क्या किया, वैल्यू आ गई -7। अगर वैल्यू -7 में आ गई तो वैल्यू अगर -7 में है तो क्या हो जाएगा, P1 इज लेस देन 0। अगर P1 लेस देन 0 हो गया तो आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होगा, y कोऑर्डिनेट जो है रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। आपको यही जो टर्निंग पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आप P2 निकालेंगे, अगर वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 0 से कम है, माइनस में आ रही, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। ठीक, फिर हमने वैल्यू क्या, मोर देन 0। अगेन हम इस फॉर्मूला को क्या किया, यहाँ पे यूज करेंगे। फिर हमने देखा फिर नेगेटिव आओ, अगेन हम इस फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। बस आपको दो चीजें ध्यान रखना है,
जैसे वैल्यू नेगेटिव फॉर्मूला में भी चेंज, जैसे वैल्यू नेगेटिव ओनली चेंजेस इन इंक्रीमेंट इन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट। जहां भी नेगेटिव आया है वो रिमेंस कांस्टेंट है, तो 10 क्यों, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव है, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे और एट द एंड में जैसे ही जब हमको n पॉइंट्स हम गेन कर लेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो एल्गोरिथम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। बात को समझ आए आप? बात को आपको समझ में आ रही है? तब हम क्या करेंगे, अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को एक कोऑर्डिनेट दूसरा ऐसे अलग से नोट डाउन करेंगे। कहाँ पे, जस्ट नीचे या फिर अभी इसके से यहाँ पे है तो हम नोट करेंगे। अब नोट करने पर इसी वैल्यूज को पिक्सल, these are the pixel actually, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ब्रेसन हैंस एल्गोरिथम, these are the pixel actually कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसको नोट कर लेंगे और इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है उस पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आप खुद सोचो, आपको 2 पॉइंट्स अगर मैं दे दूँ और इंटरमीडिएट पॉइंट्स ना दूँ तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि लाइन स्ट्रेट जाएगी? हो सकता है लाइन ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, यहाँ जाकर मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमको पिक्सेल्स, इंटरमीडिएट पिक्सेल्स फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। आगे के लेक्चर में मैं फिर 2-3 न्यूमेरिकल और लगवाऊंगा ताकि और आपको प्रैक्टिस हो जाए और मटेरियल आपको मिल जाए। जो भी क्वेश्चन लगवाऊंगा ये यूट्यूब सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन लगवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द कोचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, डिस्कस करेंगे, 1-2 और 2-3 न्यूमेरिकल और लगाया जाएगा। ओके।